students, how are you all? I hope all of you are fine and doing well with your study. So in our today class we derive some expressions. Okay, in the previous classes we explained some of the basic concepts about the image formation of the convex mirror and in case of the concave mirror. Okay, and about the also sign convention. So in our today class we derive these two formula, that is relation between radius of curvature and your focal length, and second one is your mirror formula, which is the relation between your image distance, object distance and your focal length. Okay, so to derive these two formula, first we have to know about the sign conventions. तो साइंस कन्वेंशन के बारे में पहले हम लोग ये चीज़ बता देते हैं कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता क्या है। पहले क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे, तो इस चीज़ों को करने से पहले और एक बार डिस्कस कर लेते हैं that what is the sign convention for the spherical mirrors. First point is that all the distances should measure from the pole of the spherical mirror. जितने भी डिस्टेंस है हम लोग किससे मेजर करेंगे, आपके पोल पॉइंट से ही मेजर करेंगे, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ द मिरर्स. Then the second point is that all the distances in the direction of the incident ray are taken as positive. जितने भी सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे in the direction of the incident ray is taken as positive, and all the distances measured against the incident ray direction is taken as negative. Okay, and the height, about the height, if your this is the principal axis, if your height is in the upward direction of the principal axis or above the principal axis is taken as positive, and if your height is below the principal axis is taken as negative. These are the basic sign convention in case of the spherical mirror. Now we do the derivations. Okay, first we do the relationship between the radius of curvature and the focal length. Okay, here we derive the relationship between your radius of curvature and the focal length in case of the spherical mirror. Here we consider the case of the concave mirror. You also can derive the case in case of the convex mirror. दोनों केसेस में आप लोग डिराइव कर सकते हो, बट हम एक केसेस में आप लोग को डिराइव करके दिखा देते हैं, उसी तरह आप लोग नेक्स्ट केसेस में खुद भी ट्राई कर सकते हो. मतलब आप लोग कन्वेक्स मिरर में खुद भी ट्राई कर सकते हो, हम कनकेव मिरर का केस में दिखा देते हैं. So here is an incident ray. First we consider a concave mirror. Okay, concave mirror, this one is the polished surface which is indicated by your short oblique lines, and this part is your reflecting surface. A middle line is your principal axis, this one is pole, this one is the focus, and this one is the center of curvature. One ray, one incident ray AB is parallel with your principal axis. When the ray is parallel with your principal axis, after reflection it passes through the focus according to your laws of reflection. Okay, so when the ray AB is incident at the reflecting surface of the concave mirror, it passes through the focus. How? अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं तो कैसे देखेंगे, क्योंकि according to the laws of reflection the angle of incidence equal with the angle of reflection. So where is the angle of incidence here? Angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. So where is the normal here? Normal is the ray from the center of curvature. हम लोग एक चीज़ पहले से ही जानते हैं, अगर हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, स्फीयर के सेंटर से, अगर ये स्फीयर का सेंटर है, दैट मीन्स अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, दिस वन is the perpendicular to the sphere. This one is the perpendicular line with the sphere. This हम लोग ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, and these all are normal to the surface of the sphere. So concave mirror also a part of a spherical mirror. It is a part of a sphere. So the normal is drawn from the center of curvature. Okay. Here is the normal. So the angle between the incident ray and the normal is your incident angle, which is represented by I, and here is the angle of reflection, which is R. Okay, here is the angle of reflection, which is R, and it is the angle of incidence, which is I. Let's see, it is the triangle BCF. First we write that
that is angle of incidence is equal with the angle of reflection according to the law of reflection. Okay, according to the laws of reflection. The next point, in BCF triangle, let us consider, let the C angle BCF angle is taken as alpha. Let BCF angle is taken as alpha. Okay, so अगर इस एंगल को अल्फा लेते हैं, ठीक है, देन इस केस में आप लोग देखो कि जो ए बी रे है, दिस रे इज पैरेलल विथ द सी पी. ओके, ए बी इज पैरेलल विथ सी पी. ओके, दोनों रे जो है पैरेलल है. तो दोनों रे के बीच में ये जो लाइन है, जो ये दोनों कॉरेस्पेंडिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. अकॉर्डिंग टू योर ज्योमेट्री के केस में आप लोग पढ़े हुए हो, when the two lines are parallel with each other, then the corresponding angles like this are equal with each other. Okay, so इस केस में भी क्या होगा, अगर ए बी इज पैरेलल विथ सी पी, देन आई एंगल मस्ट बी इक्वल विथ अल्फा एंगल, क्योंकि ये भी इस तरीके से है, दिस वन इज आई, दिस वन इज अल्फा, तो आई इज डायरेक्टली इक्वल विथ द अल्फा एंगल. अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, एंड आई एंगल इज इक्वल विथ ऑल्सो एंगल ऑफ अल्फा विच इज इक्वेशन 2. So obviously from equation 1 and 2, compare the equation 1 and 2. From equation 1 and 2, I angle is equal with the R angle, and I angle is also equal with the alpha angle. So obviously R alpha is equal with the angle of reflection. Okay, alpha angle किसके साथ इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ. ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपके एक ट्राइंगल में, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, BCF triangle. Okay, in case of the triangle BCF triangle में आपका दो एंगल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, the angle of reflection and this one alpha. Okay, in BCF triangle your R and alpha angle are same. In which triangle the two angles are same, this angle is known as isosceles triangle. Okay, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, इजे isosceles triangle. Okay, this one is a isosceles triangle. तो ये अगर isosceles triangle होता है, देन इसके ऑपोजिट साइड भी सेम होंगे. ऑपोजिट साइड मतलब अगर हम लोग इस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स लेते हैं, मतलब CF एंड BF. सो CF इज इक्वल विथ BF. ओके, यहाँ पर क्या हुआ, CF इज इक्वल विथ BF. ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3. इतना तक समझ गए. ये वाला ट्राइंगल जो हो गया, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल अगर सेम होते हैं, उनके ऑपोजिट साइड भी सेम होते हैं, इस वजह से CF इज इक्वल टू BF. इतना तक हम लोग पहुँच गए, दैट इज इक्वेशन 3. तो इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, इस पार्ट की अभी ज़रूरत नहीं है. तो CF इक्वल, इधर लिख देते हैं, CF इज इक्वल टू BF विच इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो CF हो गया BF. देन फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ द मिरर, फॉर द स्मॉल एपर्चर ऑफ द मिरर, अगर हम लोग स्मॉल एपर्चर वाले मिरर लेंगे, देखो जैसे कि नॉर्मली आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज करते हो, ज़्यादा बड़े बड़े डायमीटर वाले आप लोग मिरर्स यूज़ नहीं करते हो, बहुत ही छोटे छोटे मिरर्स आप लोग प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज करते हो. तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे बहुत ही स्मॉल एपर्चर वाला मिरर, जैसे कि इतना बड़ा मिरर नहीं यूज करके अगर हम लोग छोटा सा ऐसे मिरर यूज करते हैं फॉर द स्मॉल एपर्चर, देन अगर छोटा सा यहाँ पर मिरर यूज करते हैं, देन द AB इंसिडेंट रे इज वेरी क्लोजर टू दिस लाइन PC, और द B पॉइंट इज वेरी क्लोजर टू P पॉइंट. क्या होगा, अगर आपका बहुत ही स्मॉल एपर्चर हो गया, देन B एंड P इज वेरी क्लोजर विथ ईच अदर.
अगर आपके बी और पी बहुत क्लोज आ जाते हैं, दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है बी एफ एंड ये वाला जो पी एफ लेंथ है ओब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि अगर बी बहुत क्लोज आ जाता है पी के, मतलब यहाँ सोच लो कि यहाँ बी आ गया, यहाँ आ गया आपका बी पॉइंट, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाले जो डिस्टेंस है पी एफ एंड बी एफ आर ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली इक्वल विथ ईच अदर और इक्वल विथ ईच अदर। So for small aperture of mirror, we consider that PF is equal with BF. ठीक है? PF is equal with BF for the small aperture of the mirror, which is considered as equation 4. So compare the equation 3 and equation 4 from equation 3 and equation 4. CF is equal with BF and PF is also equal with BF. So obviously CF is equal with PF. Okay, CF is equal with PF, which is the equation number 5. Then next consider, we know that PC, which is the radius of curvature, the distance between the pole and center of curvature, which is the radius of curvature, and this distance, the PF, is your focal length. The distance between pole and focus is your focal length. So pole और focus के बीच में जो distance हो गया वो हो गया आपका focal length, and pole और center of curvature के बीच में जो distance हो गया वो आपका हो गया radius of curvature. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, that is PC. Okay, we can write PC is equal with PF plus FC. PF plus FC ऐसे भी लिख सकते हैं, PF plus FC. ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि PF इक्वल है आपके CF के साथ, इसको FC नहीं लिख के आप लोग CF लिख लो. ओके, दोनों ही सेम है. तो जो PF है, PF प्लस CF की जगह में भी हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, दैट इज PF, इट इज PC. सो PC जो हो गया आपका PC इक्वल टू 2PF. तो आप दोनों की वैल्यू इनपुट कर दो. PC, व्हाट इज PC? PC इज योर R. ओके, देन 2PF, 2PF is your focal length. So this is the main relationship between your radius of curvature and the focal length in case of the concave mirror. You can also derive this relation for the convex mirrors also. So next we move to the relationship between your object distance, image distance and the focal length, which is the mirror formula. Okay, first we derive the mirror formula in case of the concave mirror, then next we derive for the convex mirror. So here we derive the mirror equation for the concave mirror. First we derive the mirror equation for concave mirror. So in the case of the real image, okay, आप लोग जानते हो कनकेव मिरर के केस में दो टाइप्स के इमेज फॉर्म होते हैं. एक होता है आपका रियल इमेज एंड एक होता है आपके वर्चुअल इमेज के केस में. तो दोनों केसेस में हम लोग देखेंगे मिरर इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं. सो दिस इज द केस ऑफ द रियल इमेज. So here we consider a concave mirror. Okay, here we consider an object which is AB, which is placed beyond C. Okay, आप लोग कहीं भी रख सकते हो, आप लोग की मर्जी है. आप लोग कहीं भी रख के इमेज फॉर्मेशन करके आप लोग उस चीज़ को मिरर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो. हम यहाँ पर रखे हैं दैट इज AB is placed beyond center of curvature. Okay, when the AB is beyond the center of curvature, one ray is parallel with your principal axis and another incident ray is passing through the center of curvature. The ray which is passing through the center of curvature, obviously it is perpendicular to the surface of the mirror, क्योंकि center of curvature से जो भी ray जाता है, जो भी ray आपके surface के तक जाता है वो आपका क्या होता है, surface के लिए नॉर्मल होता है. अगर नॉर्मल हुआ that means your angle of incidence is 0, because incident ray is on the direction of the normal, that's why your angle of incidence is 0. So your angle of reflection is also 0. So that's why here the reflected ray is along the same path of the incident ray. Then the next ray which is parallel with the principal axis, it comes through the focus. Okay, this one is the concept and here is the image is formed which
विच इज ए डैश बी डैश विच इज ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो इस केस में हम लोग देखते हैं हम लोग मिरर इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। यहाँ पर और भी एक रे कंसीडर करना पड़ेगा हमें मिरर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, दैट इज द इंसिडेंट रे फ्रॉम द पोल टू द पोल। ओके, इंसिडेंट रे यहाँ पर पोल तक हम लोग लेते हैं, दैट इज टू द पोल। ओके, अगर एक इंसिडेंट रे हमारे पोल तक जाता है दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, वो जिस एंगल से हमारा इंसिडेंट करता है उसी सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग का क्या होता है, पोल के साथ परपेंडिकुलर होता है। सो दिस वन एक्ट एज ए नॉर्मल, सो दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड वही सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो आपका रे है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही सेम पॉइंट में ही मीट करेगा जहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। बस इतना ही हम लोग को ड्रॉ करना है डायग्राम। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग को एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग पहले कंसीडर करते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ओके, triangle ABC and triangle A dash B dash C. Here you look, the triangle ABC and A dash B dash C are similar. ये जो दोनों ट्राइंगल है सिमिलर है। अब सिमिलर कैसे हुए देखो, ABC ट्राइंगल एंड A डैश B डैश C ट्राइंगल को गौर से देखो। अगर आप लोग ये डायग्राम खुद अपने कॉपी में करोगे तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे। देखो ABC ट्राइंगल में ये जो B वाला एंगल है ये आपका कितना है, ओब्वियसली 90 डिग्री है। यहाँ पर भी जो B डैश वाला एंगल है ये भी क्या है आपका 90 डिग्री। ओके, और ये वाले जो एंगल है द एंगल इट इज C, ये वाला जो C एंगल है ये वाला क्या है, ये दोनों ACB एंगल, अगर हम लोग बोलेंगे ACB एंगल इज इक्वल विथ B डैश C A डैश। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट्स एंगल है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल। और ये जो B है विथ इक्वल विथ B डैश, ओब्वियसली क्योंकि दोनों ही हमारे 90 डिग्री है। देखो दोनों ट्राइंगल में दो दो एंगल ओब्वियसली सेम हो गए। ओब्वियसली एक ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल में अगर दो दो एंगल सेम हो गए हैं मतलब थर्ड एंगल भी ओब्वियसली सेम ही होंगे। तो ये दो एंगल भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब हम लोग थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं एंगल वाला जब थ्योरम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब हमारे तीन एंगल सेम हो जाते हैं, यहाँ पर ए भी सेम हो गया आपके किसके साथ, ए डैश के साथ सेम हो गया। सो बाय द एंगल थ्योरम द टू ट्राइंगल्स आर सेम। ये दो ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सेम बाय द एंगल थ्योरम। ये तो आपकी ज्योमेट्री वगैरह में है, आप लोग खुद ही जान जाओगे ये दोनों एंगल कैसे सिमिलर होते हैं। सो इसके बाद वाले बात करते हैं, जब दो ट्राइंगल्स आपके सेम होते हैं, व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सेम दे आर corresponding sides ratio, the sides of the sides of the triangle। ये ट्राइंगल के जो साइड्स है, जो दोनों ट्राइंगल के साइड्स है उनके जो रेशियो होते हैं वो भी सेम होते हैं। द करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर ऑल्सो सेम इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विथ ईच अदर। सो हियर इज द साइड, वन इज ए बी एंड ए डैश बी डैश सी में कौन सा वही सेम साइड हुआ, दैट इज ए डैश बी डैश। हमेशा वही सेम साइड ही लिखेंगे। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होके यहाँ पर है दिस इज ए बी और यहाँ पर क्या है ए डैश बी डैश। इनके रेशियो सेम होंगे उनके ऑपोजिट साइड से, जैसे कि हो गया आपका बी सी इज इक्वल विथ बी डैश सी। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो हो गए ये भी सेम हो जाते हैं। अगर आप लोग ये पूछो कि आप मैम आप ये क्यों नहीं लिए, ए सी बी तो हम लोग ले सकते थे। अब देखो कि हम लोग को क्या करना है, मिरर इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करना है। मिरर इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें उन सब की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि ए बी का वैल्यू क्या है, ए डैश बी डैश का वैल्यू पता है। बट
ए सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पता नहीं है कि ए सी जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो ए बी तो हम लोग को पता है ये हाइट है, हम लोग इजीली मेजर कर पाएंगे। अब हम लोग को कोई बोलेगा पी बी, तो हम लोग इजीली जानते हैं पी बी का क्या होगा, दैट इज माइनस यू। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जिनका हमें पता है, ओके, मेजरमेंट जिनका पता है। बट जो ए सी है, ए सी जो साइड है उसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है कि वो कितना डिस्टेंस होगा, उसका मेजरमेंट कितना होगा। इस वजह से उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग यही दो रेशियो को ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। सो नेक्स्ट वी कंसिडर द ट्राइंगल ए बी एंड पी। इसीलिए हम लोग ये वाला जो रे लिए थे ना, आपका एक इंसिडेंट रे पोल से होते हुए लिए थे, इसी वजह से ही लिए थे क्योंकि हमें ये ट्राइंगल कंसिडर करना था। सो वी कंसिडर हियर ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी आर ऑल्सो सिमिलर। ओके, ये भी हो गया आपके सिमिलर। अब ये कैसे सिमिलर हुआ देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भी बी एंगल सेम हुआ, वही सेम बी एंगल के साथ इधर भी सेम होता है। बी इज सेम विद द बी डैश एंगल। ओके, उसके बाद देखो ये वाले जो एंगल है ए पी बी एंगल, ए पी बी एंगल भी आपका सेम होगा किसके साथ, ए डैश पी बी डैश। ए डैश पी बी डैश के साथ सेम होगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल भी सेम हो गए, तो ये दो एंगल सेम हो गए मतलब थर्ड एंगल भी आपका सेम हो जाएगा। वही सेम एंगल 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 थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके सेम होंगे। इफ द टू ट्राइंगल्स आर सेम देन देयर corresponding sides ratio are also same. So we write that AB divided by A dash B dash is equal with PB is equal divided by PB dash. Okay, तो ये हो गया हमारा equation 1. This one is your equation 2. So from the equation 1 and equation 2 you see that the LHS side which is AB divided by A dash B dash, the two sides are same. ये साइड सेम हो गए मतलब ऑब्वियसली ये वाले भी सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 what happens, that is BC divided by B dash C is equal with PB dash. Okay, this one is equation 3. तो इक्वेशन 3 का एक्सप्रेशन क्या आया, बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी इज इक्वल विथ पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश। ओके, इतना तक समझ में आ गया कि हम लोग कैसे ट्राइंगल्स को इक्वल किए, कौन थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ट्राइंगल्स को इक्वल कर रहे हैं। तो इसके बाद वाला मेथड देखते हैं कि हम लोग इसमें से अब इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग मिरर इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो इन चीज़ों को पहले नोट कर लो, अच्छे से डायग्राम वगैरह कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिरर इक्वेशन को इसमें से डिराइव करते हैं। अब देखो, अब मेन चीज आता है कि आपका यहाँ पर आएगा आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूजेस अब यहाँ पर आता है। अब देखो, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस वगैरह है पहले उस चीज को लिख लेते हैं। दैट इज यहाँ पर जो डिस्टेंस है पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, बी सी इज डिवाइडेड बाई बी डैश पी इज इक्वल विथ पी बी डैश। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर मेनली डिस्टेंस सबका साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। अब देखो, इंसिडेंट रे हो गया आपके इस डायरेक्शन में, हमने क्या बोला था, द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द direction of the incident ray is taken as negative and the distance measured in the direction of the incident ray is taken as positive. अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है that is PB because all the distance are measured from the pole. So PB distance is object distance which is against the incident ray. Okay, so here it is taken as minus u. Okay, तो यहाँ पर हो गया। then image distance that is PB dash which is minus B and the focal length PF is equal to your minus F
एंड पी सी इज इक्वल विथ माइनस आर विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया आपकी बेसिक साइन कन्वेंशन, पहले लिख लिए। अब इस चीज़ को हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज बी सी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बी सी, अब हम लोग इधर लिख देते हैं पी बी डैश। अब देखो पोल से जो भी मेजरमेंट है वो हम लोग को पता है, दैट इज पी बी इज योर माइनस यू, पी बी डैश इज योर माइनस वी, वो हम लोग को पता है। बाकी जो ये वाला डिस्टेंस है पी सी, अगर हम लोग सॉरी बी सी, जो ये वाला डिस्टेंस है बी एंड सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, हम लोग हर डिस्टेंस को पोल से ही मेजर करते हैं। तो इसको उस तरीके से लिखते हैं, हम लोग बी सी को लिख सकते हैं दैट इज पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। ओके, पी बी को लिख दिए पी बी माइनस पी सी, सॉरी बी सी को लिख दिए। पहले इसको एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज बी सी बी डैश सी। अब देखो बी सी को हम लोग लिखे क्या, पी बी माइनस पी सी। ओके, पी बी माइनस पी सी इज योर बी सी। बी डैश सी वैसे ही लिखेंगे, बी डैश सी कितना हो जाएगा, बी डैश सी भी आपका हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश। ओके, इतना हो गया, दैट इज पी बी इक्वल टू पी बी डैश। ओके, तो पी बी कौन है, माइनस यू, पी बी डैश इज योर माइनस बी। ओके, पी बी माइनस यू माइनस पी सी क्या हो गया आपका, पी सी विच इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज माइनस आर, पी सी विच इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, माइनस पी बी डैश माइनस बी। इतना हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसके बाद यू बाय वी कितना हो जाएगा आपका, माइनस यू प्लस आर, उसके बाद हो गया माइनस आर प्लस वी। ओके, इतना दूर तक हम लोग पहुँचे। इतना दूर तक पहुँचने के बाद इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन वगैरह तो हमको पता चल गया। उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब यू में मल्टीप्लाई किए हम लोग माइनस आर प्लस बी इज इक्वल विथ वी माइनस यू प्लस आर, ओके। तो इस चीज़ को लिख दिया हम लोग माइनस यू आर प्लस, ओके, माइनस यू आर प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस यू बी प्लस बी आर। ओके, हो गया। उसके बाद यू वी को एक साइड ले आते हैं और दूसरे वाले टर्म को उधर ले जाते हैं। यू वी इधर है माइनस यू वी, तो ये हो गया प्लस यू वी इधर आ गया। उसके बाद वी आर ये उधर चले जाएगा विच इज प्लस यू आर, ओके, प्लस यू आर। तो ये वाला क्या हो गया आपका, टू यू वी इज इक्वल विथ वी आर प्लस यू आर। ओके, इतने तक हमारा एक्सप्रेशन आया, टू यू वी इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। ओके, तो ये हो गया हमारा टू यू वी इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज यू वी आर। हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड यू वी आर इन बोथ साइड्स। ओके, देखो मुझे इरेज करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटा सा बोर्ड है, इसलिए इरेज करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ करोगे तो आप लोग को भी इजी होगा, तुरंत आप लोग रिवाइज कर लोगे। ये कोई बेसिक कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग मेरे साथ साथ करोगे तो आप लोग को भी इजी होगा करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, डिवाइड यू वी आर इन द बोथ साइड्स। ओके, सो बोथ साइड में डिवाइड करते हैं यू वी आर, ये भी हो गया आपका यू वी आर, दिस वन इज ऑल्सो यू वी आर, डिवाइड कर दिए। अब देखो क्या क्या बचता है यहाँ पर, यू वी कैंसिल, दैट इज टू बाय आर। ओके,
तो यहाँ पर भी वी आर कैंसिल विच इज 1/u, यहाँ पर यू आर कैंसिल विच इज 1/v। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, r इक्वल टू 2f। ओके, r इक्वल टू 2f मतलब यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करोगे r की जगह पर 2f सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 2। ये वाला टर्म हो गया आपके कनकेव मिरर रियल इमेज के केस में हम लोग प्रूव कर लिए, दैट इज प्रूफ ऑफ द मिरर इक्वेशन, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द डेरिवेशन फॉर द वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ द concave mirror. So here is the mirror equation derivation for the concave mirror for the virtual image. Okay, virtual image के केस में हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज द mirror equation 1/u plus 1/v equal to 1/f. So what is the virtual case? When the object is in between the pole and the focus, in case of the concave mirror, when the object is in between the pole and the focus, the image is behind the mirror which is virtual image. ओके, तो यहाँ पर भी बस उसी तरीके से सेम डिराइव करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो सेकंड को भी और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही सेम दो ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल देखो, यहाँ पर भी वैसे ही एक पोल से रे इंसिडेंट करते हैं, दैट इज P, और वही सेम एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देन उसी एंगल को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका पहला ट्राइंगल विच इज AB and C, ABC triangle and triangle A-B-C, A-B-C are similar। ये जो हो गया आपका ABC, ABC ट्राइंगल में जो B एंगल है वो किसके साथ सेम होगा, A-B-C के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल आ गया ABC एंड A-B-C, तो C एंगल दोनों में कॉमन है तो सेम होगा। अगर दो एंगल सेम हो गए मतलब तीसरा एंगल भी सेम हो गया, वही एंगल थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे सिमिलर होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल सेम हो गए मतलब हमारे क्या हो जाएंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, दैट इज AB डिवाइडेड बाय A-B- इज इक्वल विथ AB डिवाइडेड बाय A-B- इज इक्वल विथ BC डिवाइडेड बाय B-C। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कोई इक्वेशन 1 दे देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, APB एंड ट्राइंगल A-PB आर ऑल्सो सिमिलर विथ ईच अदर। वही आप लोग थ्योरम इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपके वही सेम मेथड से ही सिमिलर हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही सिमिलर वे से लिख देते हैं, दैट इज AB A-B- इज इक्वल विथ योर PB डिवाइडेड विथ योर PB'। Okay, this one is your equation number 2. So from 1 and 2, your PB' is equal with BC B'. ओके, BC अब देखो इसको कैसे और सॉल्व करेंगे। PB इज डिवाइडेड विथ PB'। अब देखो BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC इज इक्वल विथ PC माइनस PB, PC माइनस PB। ये वाले हो गए बाकी सारे साइन कन्वेंशन। तो PC माइनस PB, वैसे ही B'(C) को क्या लिखेंगे, दैट इज B'(C) को वैसे ही क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका PB'
पी बी डैश प्लस पी सी। ओके, इतना तक जान लिए। बी सी को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, बी डैश सी को हम लोग क्या किए, दिस मच प्लस दिस मच। ओके, इतना तक कंप्लीट करिए। देन पी बी क्या है, दैट इज माइनस यू, पी बी डैश दैट इज प्लस वी इज इक्वल विथ पी सी क्या है आपका, माइनस आर। उसके बाद हो गया आपका पी बी इज योर माइनस यू। देन पी बी डैश इज योर प्लस वी। देन पी सी इज योर माइनस आर। तो ये वाले टर्म को इधर लिखते हैं, दैट इज माइनस यू बाई वी इज इक्वल विथ माइनस आर प्लस यू डिवाइडेड बाई वी माइनस आर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज माइनस यू वी माइनस आर इज वी माइनस आर प्लस यू। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू वी प्लस यू आर इज इक्वल विथ माइनस वी आर प्लस यू वी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यू वी प्लस यू वी इज इक्वल विथ यू आर प्लस वी आर। ओके, वैसे ही बोथ साइड में क्या करते हैं, यू वी आर को डिवाइड करते हैं, दैट इज 2uv, ये हो गया यू आर प्लस वी आर। बोथ साइड में डिवाइड करते हैं, यू वी आर, ये भी हो गया यू वी आर। देन इस केस में आपका क्या आ जाएगा, यू वी आर अगर हम लोग ये करते हैं, देन ये आ गया आपका 2/r, ये वाला यू आर विच इज 1/v, ये वी आर कैंसिल 1/u। और इसको लिख सकते हैं, आर को लिख दिए 2f, तो 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये केस हो गया आपके कनकेव मिरर का। आपके किस केस में हो गया, आपके वर्चुअल इमेज के केस में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग मिरर इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।